Hello, everybody, those who are here. This is Alok from Delhi Center. I have had a word with you people a few days back. I see only 3 people have joined yet. Guys, can you contact others, those who can come? You must be having contact of each other. Yes, two more people left. Okay, Deepak, Yeah. your voice is very meek, but what I get that, okay, you are texting them. Maybe please try. So maybe I'll have to wait for another minute or two before I start. Well, guys, I don't think anybody else is joining in. So just please confirm. Is my voice clearly audible and screen visible to everybody? Visible, legible, and it is moving, not still. Clear, sir. Okay, sounds good. So you guys raised concern about the modules of SQL Tableau, and couple of project algorithm on Python. That's right. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एसक्यूएल में आप लोगों ने करिकुलम के विद इन योर करिकुलम कुछ किया होगा प्रैक्टिस, तो थोड़ा सा बताएंगे मेरे को क्या बैकग्राउंड है, कितना आप लोगों को समझता है, या बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है मेरे को? व्हाट हैव यू डन इन एसक्यूएल? सर एसक्यूएल स्क्रैच से शुरू करना सर. एसक्यूएल बिल्कुल स्क्रैच से. टैबलू वुड हैव सम नॉलेज. पाइथन में से प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है बस. एंड ओके, दैट्स pretty much from Deepak. What about others?
अ, हाँ सर, स्क्रैच से ही करना है। थोड़ा बहुत आता है पर स्क्रैच से कर लेंगे तो सब समझ जाएंगे। Okay. हेलो सर। Yes, Sonu. ये सर, सर वो पाइथन में प्रोजेक्ट तो है, साथ में एल्गोरिथम्स भी है जो हमें रियली बिल्कुल नहीं आती कि इसका यूज किस तरीके से होना चाहिए। Okay, okay, okay. So, okay, I got a fair idea, and well, thank you guys. So, it was just to you have pointed me in the right direction. I have a fair idea what I have to go about. So, okay, we will talk about SQL. There is a link in the chat box, so click on that. This link will bring you to this kind of a screen. Everybody here? Just guys, ping me quickly. Ping in the chat box. If everybody is here, yeah, okay, thank you. So that will be my cue. So guys, see, please keep my sessions interactive. Keep interacting with me so that I know when I can proceed ahead. And yeah, we will keep talking every now and then because कोर्स पूरा करके तो एक बार देख चुके हो आप लोग, तो मेरे सेशन में वैसा नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है ना जी? So okay, so you click on download. You will download this version. We will not rely on internet connection. We will download the entire setup for once and then we will run it offline. So download this, click on download. It will ask you to log in or sign up. You don't have to sign up. You can just click here. No thanks. Just start my download. तो एक इंस्टॉलेशन सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. इट इज अराउंड 400 MB, so it will take a while. डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया आप लोगों का. डाउनलोड बिगिंस फॉर एवरीवन. जी सर, स्टार्ट हो गया सर। यस सर। ओके, ग्रेट. सर दामिनी मैम की शादी हो गई सर? हाँ जी. सर दामिनी मैम की शादी हो गई सर? Yeah, it was on 6th. ओके। What happened, Deepak? You seem heartbroken. नॉट एट ऑल सर एक्चुअली। मैं तो ये पूछने वाला था, 100 से ज्यादा लोग बुलाया नहीं बुलाया, आप लोगों को बुलाया नहीं बुलाया? Okay. Acha, for others also, please don't mind. I keep doing these things on my session. Okay, I joke around and play around a lot. And had it been a classroom session, okay, I do a lot of not. Not an issue Not sir, understand. not an issue, Not we are understand. like that. Okay, okay, all good, all good. Okay. Meanwhile, this download happens.
I will talk about some terminology also because we will be using that every now and then. Like कुछ आपका theory part हुआ होगा, like what we are dealing with is data all in all. So where does SQL fit in and where does R, Python and Tableau fit in? So do you have something around it? Abhishek would tell you, sir. Abhishek? Someone, anyone from you? सर जैसे टेब्ल्यू तो सर विजुअलाइजेशन टूल होता है। सीक्वल जो है वो एक मतलब एक क्वेरी लैंग्वेज है, इस पे क्वेरी लिखते हैं अपन। और मतलब ठीक है, पाइथन यूज में ले सकते हैं, आर यूज में ले सकते हैं, लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट अगर अपन काम में अगर अपन बनते हैं तो अगर मेरे हिसाब से सर सीक्वल से क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल हो जाएगी, और डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए विजुअलाइजेशन टूल के लिए टैब्ल्यू हो जाएगा, तो भी मतलब काम चल सकता है। मतलब एक इनिशियल लेवल पे काम चल सकता है। और पाइथन और आर का इतना मुझे लगता नहीं कि इतना रोल आता है एज अ डेटा एनालिस्ट में, और इसलिए आप बताएं सर अगर कुछ पाइथन का ज्यादा रोल आता हो। मेरे हिसाब से तो नहीं आता है पाइथन का। मैंने जहां तक मैं जानता हूँ, हाँ जहां तक मैं जानता हूँ, डेटा एनालिस्ट में एडवांस एक्सेल, सीक्वल और टैब्ल्यू से हो जाता है काम। जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, पाइथन जो आता है वो उनके बहुत सीनियर लेवल पे जो पर्सन है जो काम कर रहे हैं, वो उन पे पाइथन पे काम करते हैं, कोडिंग वगैरह वो करते हैं। तो बहुत इनिशियल लेवल पे तो यही चीज है, सीक्वल और टैब्ल्यू से इनसे काम हो जाता है उनका। That's well, that comes as a surprise. What about others? Anybody else want to give their want to contribute? Like, sir, SQL is a query language where we are dealing with the database data, or we can extract, or we can edit, or we can amend the data. So basically डेटाबेस के डेटा के साथ खेलना ही एसक्यूएल का काम है। अमेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी चीजें। Okay, Mayank, something? अच्छा मयंक सेम। सोनू? Somebody's mic is on. Guys, if you want to ask me something or I am asking you something, then sure, you can switch on your mic. Definitely you should. But if you are not talking to me, and then please mute your mic so that background noise doesn't disturb. I have enough background noise around me. Children are playing in the corridors. बेचारे पार्क नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो बढ़िया उपद्रव मचाया हुआ उन्होंने बाहर। I hope it is not disturbing way too much. मेरा बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर नो रहा? सर, नो सर, ओके फाइन। नहीं सर, नो ठीक है सर। सर। फाइन। या सोनू, मे बी समथिंग। सोनू, यू देयर? See, I am asking you like this is because जैसा अभी अभिषेक ने बोला, तो आई एम सेइंग दिस केम एज अ सरप्राइज बिकॉज you are really not aware of the roles of
कि डेटा एनालिस्ट किसे कह रहे हैं और डेटा साइंटिस्ट किसको कह रहे हैं. Python is pivotal when it comes to data science. As far as analysis goes, fairly said, Excel is a popular tool and it can do a certain level of analytics. आप लोगों का डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बता देंगे. मीनवाइल मैं कुछ और बात कर रहा हूँ. I want to show you something which I usually run in the batch launch. So this is a broad landscape and these are the buzzwords which you might have heard. सुने ही हो, ये सारे ही सुने होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लिखे Yes, sir. होंगे. Yes, sir. So do you realize what is the common platform where they all gel, and do you realize that there is some difference in all of these things, or are we using these terms interchangeably? किसी को कुछ भी बोल देते हैं जब जैसा मन किया, ऐसा तो नहीं है. कई बार सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स एग्जैक्टली क्या है, डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है या डेटा एनालिटिक्स से हटके है, तो मेरे को तो हो जाता है कंफ्यूजन थोड़ा. You see, that is why I asked. It is okay. Point taken. It is not your mistake if you don't know that. But let's get to know it now. कुछ कुछ पता है सर. जैसे डेटा एनालिटिक्स में मैंने बताया कि वो SQL का और एक विजुअलाइजेशन टूल या एडवांस एक्सेल का एनालिटिक्स करते हैं. इसमें डेटा एनालिटिक्स में ये हो गया. बिग डेटा में मतलब हडूप से रिलेटेड कुछ होता है. डेटा माइनिंग में ETL जो DBA वाला रोल होता है, आई थिंक उसमें डेटा माइनिंग में जाता है वो. और डेटा साइंस के अंदर आई थिंक R या पाइथन का यूज आता है. बिजनेस एनालिटिक्स में थोड़ी शायद कॉमर्स आ जाती है, फाइनेंस सेक्टर आ जाता है. ठीक है, बताता हूँ. चलो. Okay, you gave a very fair idea. The data analytics is something when you are analyzing data for some insight, and this part is what you are talking about, that it is taken care in advanced Excel. Data analytics means tabulating the data, creating summaries from the data, like finding averages and finding totals and seeing, looking for something in increasing order, something in decreasing order. So mostly data analytics is related to that. We call it 5-point summary. 5-point summary means, think about it. Analysis is always, when I say analysis means some number. And the 5-point summary of a number which I am referring to is minimum, maximum, average, total, and count. And think about it. Isn't it 90% of the analysis in our daily life? Yes or no or maybe? No sir, I didn't get you sir. क्या पूछ रहे सर, मेरे को समझ में नहीं आया. What happened? Did my voice dropped off? No sir, I didn't get you. Like 5-point summary was 5-point summary. मैं कह रहा हूँ, if I have some numbers, तो मैं क्या summary देख सकता हूँ उसकी? Maybe I will calculate mean, average. Maybe I will mean, want to mode, see median. what is minimum, what is maximum. Maybe I will want to sum all those values, or maybe I will want to count those values, that how many
observations are these. So Count this is value, how that distinct called, values. 5-point summary. So that is analytics. I mean, that is very crude definition of analytics, but I hope you got my point. So that is what it can be done in advanced Excel, जिसको हम बोल रहे हैं, and that is fairly good. So this is the ocean. I have the data and I am trying to analyze this. So that data is the common platform where all these terms gel in. Then there comes specifications. Specifications like business analytics. Business analytics, we call this is the domain where, ठीक है, analysis तो है, but business is prominent. Business in the sense, ये एनालिसिस किस इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, वो इंडस्ट्री कैसा काम करती है. Every business has some underlying currents and some trade secrets which only those people know who are working in there. So when business knowledge becomes imperative, that domain, उन लोगों को business analyst बोल रहे हैं. They are called business analysts, that they know analysis also, but they are more focused on the business for which they are analyzing. Then there is machine learning. सर ये बिजनेस एनालिटिक्स वाला सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. मतलब वो जानते हैं, ठीक है, एनालिटिक्स करना जानते हैं वो, प्लस उनका मेन फोकस उनका बिजनेस पर रहता है. बिजनेस मतलब किस इंडस्ट्री के लिए बोलना चाह रहे हैं कि I will एज अ सेल्स प्लस एनालिटिक्स बोलना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, not exactly sales. अच्छा, I will come to this. Just give me a moment. I will come to this with an example. I did not think it through. Maybe I will cook up something. I will explain this with the help of an example. Just give me a few seconds. Stay with me meanwhile. Currently the buzzword is machine learning, जो आप लोगों ने किया भी है, भले नाम के लिए किया है लेकिन किया है. Machine learning means when your machine is learning from the data, you are not manually analyzing anything. You have thrown away the data into a black box. Which black box? वही जो सामने रखा है आप पे, your laptop. You have thrown that data, you have fed that data to an algorithm, and now your machine is learning from the data, and it is trying to tell you that what seems like happening, what this data is indicating. होता है ना लीनियर रिग्रेशन में, अगर रन किया होगा तो. इफ लीनियर रिग्रेशन पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो आप लोगों को, you feed some है ना, you feed some variables, some attributes, and you try to predict the target variable with the help of predictor variables, and you don't know what exactly is going on behind the screen, but वो करके बता देता है. R² निकालना आता है ना. हाँ सर, पढ़ा है ये. Okay, good. Then what happens with data science? Data science is the marriage of this business analysis and machine learning put together. A data scientist is someone who can do manual analysis, who can do machine learning, and who knows business also, have a fair knowledge of business also. तो जो आप मैनुअल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वेल दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय एक्सेल, वो समझता है. मशीन लर्निंग के लिए आपको लगते हैं आर, पाइथन जैसे टूल्स. विदाउट कोडिंग मशीन लर्निंग इज पावरफुल हो ही नहीं सकता. इसके अलावा बचा बिजनेस. नाउ किस चीज को कह रहे हैं हम बिजनेस? Okay, for this part I will not record this, but maybe मैं data analysis कर सकता हूँ. Maybe I am very capable with these kind of tools, but knowing the business कि यहाँ पर sales होता कैसा कैसा है, यहाँ पर customer कैसा कैसा होता है,
कहाँ से सोर्स हो सकती हैं लीड्स, these things a normal data analyst will not know. For that becomes a data scientist when they have some knowledge of the business also. कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस ये एनालिटिक्स आपको मालूम हो? This is, if it is visible, is it visible? Is my screen moving? Yes, Yes, sir. sir. So if you can see this is one complete cycle of data analytics. You can see it is not showing to me. Guys, is my screen moving? You can see this screen. Data collection, data extraction. Yes, sir. Data preparation, Yes, mining, sir. visualization, model Very building. fine. Very fine. Great. So this is one complete cycle of an analytics project. It all the story, the whole gamut begins with data collection, which you people have already realized. In fact, everybody knows. जिसको data science नहीं भी पता है, उनको भी पता है that data is important. So they are collecting data like anything. Whatever data is possible to be gathered, to be captured, they are trying to collect it. आप एक छोटा सा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करते हैं, it will ask for 20 permissions it will ask from you, and it is so irritating. होता है ना, मेल आईडी भी बता दो, फेसबुक अकाउंट भी बता दो, लोकेशन भी बता दो हो सके तो. Yes, sir. What they are trying to do, all in all, they are trying to capture your data as much as possible. Then this is the part, data extraction. Extraction in the sense, this is not, actually it is not only extraction, this is extract, transform, load process, ETL we call it. Are you aware of these terms? When I say ETL, सुना है सर, SPSS करके ये टूल्स वगैरह काम आते हैं ETL में इसमें कुछ. आपने से किसी ने बोला था थोड़ी देर पहले ETL. अभिषेक ने बोला था सर. Perhaps. हाँ सर. Okay. So ETL stands for extract, transform, load. See, Load. Yes. what happens is, see इस फेज में जब जिस समय डेटा कलेक्ट हो रहा है, अभी तो फिर भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जिनसे डेटा कलेक्ट हो रहा है. इफ आई टॉक अबाउट 10 years बैक और सिनेरियो इवन 5 years बैक, सो डेटा कलेक्शन का कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा कलेक्ट नहीं होता है. Many times it is not possible to collect it in structure. For example, image recognition या speech recognition. So these are examples of unstructured data. It cannot be in clean tabular form. जैसा टेबल पे डेटा आप देखते हो एक्सेल शीट में या CSV फाइल में, so certain data cannot be put into structure. Then there were problems like that even if data you are trying to capture it in structure, people are not providing. For example, आप लोगों ने कभी दिए होंगे सर्वेज, ऑनलाइन सर्वे, ऑफलाइन सर्वे, फीडबैक फॉर्म्स जैसे भरते हैं. Yes, sir. है ना, राइट? इफ इट इज ओनली क्लिक क्लिक क्लिक,
कि choose this option from these options, or maybe rate on a scale of 1 to 5, so maybe you will put a number. But if it is subjective, then it becomes unstructured, because you have put in you have written a 3-4 lines feedback, and now it cannot be tabulated. Many times there are data anomalies, like surveys में, suppose you are doing a survey and there is a column mobile number, और मैं तो नहीं देता मोबाइल नंबर, मैं सच में भी नहीं देता हूँ, मुझसे वैसे कुछ पूछो मैं बता दूंगा, बिकॉज तंग करोगे ना यार तुम फोन करके बाद में, तो इसलिए मैं देता नहीं सर्वे वालों को। अब उस डेटा में मेरा बाकी डेटा चला गया, मोबाइल नंबर इज मिसिंग, दैट बिकम्स अ नल वैल्यू। So this process, ETL process, is what extract, transform and load. Extract the relevant data, not relevant I should say the data which matters, जिसके होने का कुछ फायदा है मेरे पास, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम द रॉ डेटा, जहां से भी आपने कलेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ क्लीन स्टैंडर्ड फॉर्म and load on the server or cloud nowadays। अभी तो क्लाउड भी आ रहा है, बहुत सारे लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं टू हैव दैट। अभी तक यहाँ तक आप लोगों का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट इवन, यहाँ पर अभी तक आप लोगों का कोई खास काम आया नहीं, इसके बाद आप लोगों का काम शुरू होता है। Okay, when you have data and you have data on your server in clean form, then there comes role of data scientist or analyst. Do you have a distinction of, like if I say database, what is a database? A data set? A data set is anything. Yes, sir. But what is database when I am talking about database? सर एक ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम किसी डेटा को कलेक्ट करें तो हम उसे डेटाबेस बोल सकते हैं। Where we are recording our data. Very nice, very nice. Guys, हाँ ये बात करते रहिए मेरे से। See, if I am talking about something which you already know, then it means I am boring you. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। If I am telling you something which is new, then it is interesting. तो बताते रहना मेरे को, ठीक है? तो see, database, I am showing you an illustration. Suppose एक there is a company and ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपना डेटा रख रहा है। I mean, for example, for the same employees, HR will maintain one data set. Yes or no? कि ये एम्प्लॉय कब ज्वाइन किया था, कितने लीव ले चुका है, कितने लीव बाकी हैं, कोई बेनिफिशियल इशू तो नहीं है। सही बात है। HR के पास एक वर्जन होगा उस डेटा का। उन्हीं एम्प्लॉयज का एक डेटा मे बी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होगा। इसकी सैलरी कितना जाता है, इसका टैक्स कितना कटता है, किस डेट में क्रेडिट होना था। सही बात है। एंड उसी एम्प्लॉय का एक डेटा एडमिन के पास भी होगा। इसके इनकमिंग पंच क्या क्या हैं, इसके ऑफिस लिविंग पंच क्या क्या हैं, किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, क्या क्या इन्वेंट्री इशू करा रखा है इसने। तो everybody is having their own version of data, and just imagine if they are maintaining their own record. किसी ने PDF फाइल में रख रखा है, किसी ने एक एक्सेल शीट, किसी ने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है, किसी ने CSV।
और किसी ने तो, यू विल नॉट बिलीव मे बी, बट not very very long ago, but only before it gained traction, this data science and all, there were many companies, they maintained physical files, paper files, documents. उन्हें विश्वास ही नहीं है कंप्यूटर पे. It used to happen. So think about it. ऐसा डेटा अगर सबके पास अपना एक वर्जन है, and being a head of this organization, if I want to have a bird's view vision कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, कुछ पता चलेगा मुझे इससे? I will be lost. So definitely these are data sets, but this cannot be called a database. A database should be something very organized, where I can have that hawk's eye vision of what is going on in the organization if this data is put together. Yes, sir. Then comes the next question. Have you heard of the term data warehouse? सुना है, ये बताया किसी ने? DBMS, RDBMS? हाँ सर, बताया तो नहीं. डेटा वेयर हाउस होता है. हाँ सर, पढ़ा है सर, DBMS पढ़ा है सर. मैंने नहीं पढ़ा सर, सॉरी. डेटाबेस मैनेजमेंट. DBMS is डेटाबेसेस nothing else, but जैसे मैं डेटाबेस कह रहा हूँ, तो I need some system to manage this database. उसी को DBMS कह रहे हैं, database management systems. And as it happens, currently we have very sophisticated systems for that. तो उसको DBMS कह रहे हैं, but RDBMS किसको कह रहे हैं? RDBMS. What is R in RDBMS? DBMS तो समझ आया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. पता नहीं सर, मुझे तो नो आइडिया. See, R is relational database management system. अभी रिलेशनल क्या है? जो मैंने आपको बोला अभी टर्म डेटा वेयर हाउस. So if somebody asks you what is the difference between database and data warehouse, so in a way this question is wrong. Anyway, any data warehouse is also eventually a database. तो database तो ये भी होता है. So database तो सभी हैं. A database becomes a data warehouse when it satisfies, it contains some properties. Four succinct properties. Specifically, we call it, बिल्कुल बुक डेफिनेशन से अगर मैं बताऊं, तो इट इज इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी. डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी. अब ये भारी भारी शब्द देकर डरने की जरूरत नहीं है, वो बताता हूँ. अभी है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है. इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी मतलब, सपोज यहाँ पर ये सभी लोग अपना अपना डेटा लेकर के बैठे हैं. I should be able to integrate this data together. Integrate this data together. Suppose ये employees का डेटा है, this is coming from HR. ये HR का पास था, ये कोई फाइनेंस के पास था, कोई लीगल के पास था. I should be able to integrate this together से मतलब I should be able to create one master data for this employee ID X,
हर जगह एक एम्प्लॉय होगा ना, सपोज यहाँ भी एक्स है, इसका भी कुछ डेटा यहाँ पर है, इसका एक्स का डेटा कुछ ये है। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इस एक्स एम्प्लॉय का डेटा रखता है। तो आई विल call it data warehouse if I have the facility to integrate all of this data for Mr. X together in one master data set. So that is meant by integrated repository. इसी को दूसरे शब्दों में RDBMS कह रहे हैं, relational database, that these table are related somewhere. I can relate them and I can create a one master data set, one table which is parent. Okay. Okay, sir. सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी हुआ। सेकेंड थिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज दैट, वी कॉल इट, इट शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड। So a database will become data warehouse if it is subject oriented. Subject oriented, by subject oriented I mean that its purpose is already defined. फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू पीपल नो दैट कि अगर आप एक इंटरव्यू में गए और उस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, यू विल ज्वाइन। सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन हुआ और आपने चलो सिलेक्शन नहीं भी रुकते हैं, और उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आई होप यू पीपल नो दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, द कंपनी विल ब्लैकलिस्ट यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। यू पीपल नो दैट? Yes, sir. क्यों करते होंगे ऐसा? सो पर्टिकुलर टाइम के लिए कर देते हैं, किसी कंपनी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, किसी का 6 महीना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एक ही कैंडिडेट पे, कि मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आए वो। एग्जैक्टली, द इंटेंशन बिहाइंड इज कि ये कैंडिडेट को हमने किसी भी वजह से अगर आज सेलेक्ट नहीं किया है तो 2 महीने बाद ये बदल नहीं जाएगा। पता लगा हमने फिर वो ओपनिंग रेस की, फिर यही कैंडिडेट आया, तो अननेसेसरी उसका भी टाइम वेस्ट है, हमारा भी टाइम वेस्ट है। And for these purposes, they are doing several things. They are recording your demographics, like your name, your Aadhaar card, this that, and they are even recording के इंटरव्यू में आप लोगों ने इंटरव्यू में कैसा रिस्पॉन्स दिया था। So this is also happening. Now tell me, does this, all of this data, जो भी आपका डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया है, आपसे फॉर्म भरा लिया, फोटो ले लिया, नाम नंबर ये वो दुनिया भर की बातें हैं, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी है, इंटरव्यू का स्कोर भी है, जो रिज्यूमे आया था वो भी है, एंड होल गैमट ऑफ इंफॉर्मेशन, इज इट ऑल रिक्वायर्ड टू गो इनटू माय डेटाबेस? मेरा पर्पस मुझे मालूम है, आई वांट टू फिल्टर आउट दीज कैंडिडेट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दैट ये दोबारा अप्लाई ना कर दे। डू यू रियलाइज दैट? इंटरव्यू में आप लोगों से जैसे क्वेश्चन हुआ एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना? अरे दिए होंगे इंटरव्यू। यस सर। चलो यार, यस सर। इंटरव्यू दिए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला को क्या होता है क्वेश्चन? आपको कॉल आ गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ यही होता है ना सोनू? हैव यू अपीयर्ड एट इंटरव्यूज? यस सर, यही होता है। और फिर क्या गंद मचाते हैं आप लोग। आज ही पता हाँ सर। आज ही पता है पहला क्वेश्चन क्या होगा, बट रेडी नहीं होते उसे आंसर करने के लिए, और फिर वहां पे देन यू स्टार्ट सर वो तो रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ भी लेते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं अपने बारे में बताओ, मतलब फिर क्या मतलब है, रिज्यूमे मत पढ़ो फिर। ओके
So the first question to break the ice is tell me about yourself and then you start off like anything. कभी कॉलेज की बात बताते हो, कभी स्कूल की बात बताते हो, कभी कंपनी की बात बताने लगते हो, कभी हॉबीज बताने लगते हो, and then you are lost. My father is a retired officer, my mother is a housewife. I have a pet whose name is Rustam. He's very naughty, and everything goes down the gutter. चलो ये क्वेश्चन क्या होता है, चलो मे बी someday I'll discuss that. It is not an unnecessary question, Sonu, and others also, if you think so. It is not. It is not that. इंटरव्यूअर ऐसा क्यों पूछते हैं Yes. बताऊंगा किसी दिन. हाँ सर, लेकिन ऑल दो इसकी डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है. सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में तुमको ये बताना है. आप दूसरे से पूछोगे तो बोलेगा ये बताना, तीसरे से पूछोगे तो बोलेगा ये बताना. तो दैट इज नॉट ए प्री डिफाइंड लैंग्वेज और प्री डिफाइंड डेफिनेशन की आप इसी पे रिलाई कर सको. सबका अलग अलग है. हाँ सर, कभी तो बोलते हैं ब्रीफ में बताओ, कभी बोलते हैं कि बहुत लेस वर्ड में बताओ. तो सब लेस वर्ड में क्या बताया, ब्रीफ में क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आता. Well, I will talk about that in detail someday. Definitely someday. ओके, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लियर हुआ ना. सब्जेक्ट ओरिएंटेड कि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है मैंने इंटरव्यू में ये दिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस डेटाबेस का पर्पस कुछ और है. मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था, इसने आईडी क्या लगाई थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लगाया था, मुझे आगे से वही मांगना है, एंड डन विद इट. खत्म हो गई बात. तो और सारी दुनिया जान की बातें इकट्ठी करने का जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट ओरिएंटेड. नेक्स्ट वन इज, we call it non-volatile, which is by far the most important property of data warehouse. Non-volatile in the sense it should not be deleted, altered, or updated unnecessarily. It should not be modified. Once I have this information, it should be kept with me. So that along with time, I can see what is changing, at what pace it is changing, these kind of things. Now don't get me wrong. For example, मैं बताऊं, if I tell you, चलो एम्प्लॉय वाली बात कर लेते हैं. देयर आर एम्प्लॉयज के बारे में अगर डेटा सेट होगा तो कैसा दिखेगा वो डेटा सेट. देयर इज एम्प्लॉय आईडी, देयर इज, हाँ जी, क्या क्या होगा, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, सैलरी, all these kind of things. Yes. यस सर. So if this is a data warehouse, see many things कैसे होंगे, लाइक अच्छा चलो ये अननेसेसरी वाले हटा ही देता हूँ. एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं. Say this is employee ID, this is employee ID X, and maybe taking salary 50K, for example. Suppose ऐसा सिनेरियो है, एंड वन फाइन डे एचआर का मन करता है कि यार सैलरी हम 50K क्यों लिख के दे रहे हैं, हमें तो सीटीसी देखना चाहिए. हाँ, कॉफी भी तो पीता है ये, सीटीसी बनाएंगे. तो लेट्स कन्वर्ट दिस टू सीटीसी पर एनम. तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ दिस बिकम्स 6 लाख प्लस कॉफी. बाकी जो एचआर करते ही हैं, तुम में से तो एचआर नहीं है कोई, तुम में से एचआर तो नहीं है. नहीं सर, हम लोग इतने बेदर्द नहीं है सर. अच्छा नहीं सर. अच्छा ठीक है. हाँ, बिफोर बिफोर मैं बेइज्जती कर दूं एचआर वालों की तो पहले पूछ लेना चाहिए. कभी कभी मैं बोलना पहले नहीं शुरू सर, नॉट एन इशू, प्लीज सर कंटिन्यू टू डू इट सर, हमारी तरफ से भी सर. कर ठीक है. हाँ तो करते हैं ना एचआर. यू पीपल जो जॉब में रहे होंगे, यू रियलाइज दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग. हम तो सीटीसी देखेंगे, सीटीसी बताएंगे, सीटीसी में सब कुछ जोड़ रखा है उन्होंने, 54 58 सब जोड़ के बता दिया कि देखो कितना अच्छा पैकेज है तुम्हारा.
तो एक दिन हम उसे सीटीसी कहने लगे. नाउ देयर इज ट्रेंड कमिंग बैक. करंटली यू गाइज आर गेटिंग स्मार्ट. एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ये भावनाएं छोड़ो, सीधे सीधे ये बताओ टेक होम क्या दोगे. तो अब ये कॉलम, ये फिर से वैल्यू चेंज हो गई. टेक होम क्या देंगे, क्या देंगे जी टेक होम, वही 50K पर मंथ माइनस पीएफ माइनस टैक्स. ये भी निकल गया. सही बात है ना, ऐसे ही होता है. हाँ सर, सही बात है। पीएफ वो भी बोथ साइड्स, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, हमारी सैलरी से। अच्छा, तो एम्प्लॉयर का भी तुम्हारी सैलरी से कट रहा है क्या? अरे बड़ा जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ. हाँ कौन हाँ से सर, हाँ वो कोई सर, केस, कोई लॉयर हो तो यही हो फिर रहा है बताना। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई ढंग की कंपनी में जाओ. सर। तो सीटीसी तो बता दी, इतनी सारी तो इधर आती है कि ना, इतनी से हाथ में क्या है ये. You see where this is going. You guys are so predictable. So, well, maybe I have taken a good example. What is सर अगर इंटरव्यू देने जाओ तो वो यूं नहीं पूछते कि तुम्हें सारी सीटीसी कितनी, पूछते तुम्हें इन हैंड कितना मिलता था, वो ऐसे पूछते हैं, वो सीटीसी भी नहीं पूछते. okay? So, well, you realize where this is going. What I mean to say is, this is not, this is volatile in nature. So, what is doing? We are unnecessary changing these things. Eventually, बात एक ही है. हमें किस बात से मतलब है कि कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें किस बात से मतलब है कितने पैसे दोगे. लेकिन हम अननेसेसरी इसको कभी ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं. तो ऐसे चेंजेस डेटा वेयर हाउस में नहीं होने चाहिए. नॉन वॉलेटाइल. ठीक है. नाउ इट डज नॉट मीन कि नेसेसरी चेंज नहीं होंगे, नेसेसरी चेंज होंगे. सपोज आई वांटेड टू एंटर, इस एम्प्लॉय की सैलरी 50K होनी थी, एक्चुअली गलती से 55K फीड हो गई. एंड वन डे आई रियलाइज दैट दिस इज अ रॉन्ग एंट्री. तो ऐसे चेंज तो होंगे, अननेसेसरी चेंजेस नहीं होने चाहिए. सो नो डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन unnecessary. That means non-volatile. So far so good. I hope it is. I am adding some value. यस सर। Okay, very fine. Good to know. Yes. तो वेल guys, आप लोगों का इंस्टॉलेशन वो डाउनलोड हो गया है क्या अभी तक, या अभी भी चल रहा है? कैन यू प्लीज चेक? डन सर, डन। ओके. अभिषेक, सोनू. हाँ सर. सर मेरे घर पे तो सर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो वो टाइम बहुत लेगा. मेरा तो 1 डे लेफ्ट बता रहा है. ओह, 1 day left. Okay, हाँ, इसलिए सर नेटवर्क का इशू है. let's do one thing. कल तक तो मैं कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्लास। Let's do one thing. Let's break for a while. ठीक है. And Sonu, what you can do is you can end this go to meeting. तो उससे बिकॉज बैंडविड्थ ये गो टू मीटिंग भी कंज्यूम कर रहा होगा, तो हो सकता है स्पीड कुछ आ जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत जान आ जाए उसमें. ठीक है. नहीं सर. सर मेरा इसका घर जिस डाउनलोड नहीं होगा लोकेशन तो में है ना, हाँ जी. सर मेरा घर जिस लोकेशन में है ना, वहाँ नेट का इशू रहता है. सर ये जो यहाँ पे जो घर है ना, जिस लोकेशन पे है ना, वहाँ नेटवर्क का इशू रहता ही है. ओके. तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा. मैं बाद में कर लूंगी वाईफाई से, मतलब एक पड़ोसी के वाईफाई से डाउनलोड कर लूंगी. ओके. ओके, चलो फेयर. तो आप पढ़ा दीजिए, मैं फिर उसका रिवीजन खुद कर लूंगी. ओके, वेरी फाइन. ठीक है, ठीक है. अभिषेक, योर सेटअप इज डाउनलोडेड. इज योर सेटअप डाउनलोडेड? हाँ सर, मैंने हाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया सर. ओके, इंस्टॉल कर रखा है मतलब ऑलरेडी है. हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर सीक्वल. ओके. ओके, चलो ग्रेट. सो दीपक, आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर. यू आर प्रेजेंटर नाउ एंड यू कैन शेयर द स्क्रीन.
सर स्क्रीन है विजिबल मेरी? Yes, now it हाँ is. दीपक यार मेरे को तो दिख रही है। What we will do is we are installing MySQL. MySQL is also a DBMS, and it is by far the most popular open source DBMS. And for individual editions, it is freely available, so anybody can use it. So for SQL, we are going to do that on MySQL Workbench. So Deepak, just let me see that installation. This one. करूँ सर, इंस्टॉल करूँ? हाँ जी, बिल्कुल। Have you clicked twice? कैंसिल कर दो एक को। कर दिया सर, कर दिया। Can you close all those tabs which are unnecessary for now? वैसे कोई रन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, करूँगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं करता ही नहीं, उसको डायरेक्ट बंद कर देता। There are several tabs open और क्या भाई नौकरी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है जोर जोर से चल रही है दर्द। सर जो पड़ा रहता है ओपन ही है, ये पता नहीं कब से पड़े हुए हैं। ये पड़ा हुआ है, नीचे टैबलू पड़ा हुआ है, नीचे जुपिटर नोटबुक पड़ा हुआ है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है। और मैं रेडी भी नहीं था कि मुझे आप बोलोगे शेयर करना स्क्रीन। फिर मैं साफ करके रखता। So well, this is Yeah, your that was a sudden attack on me. so this should become an eye opener for people. I can Yeah, from the next time I would be more prepared for it. yeah, I may catch hold of you any day unguarded. So be ready for that. Okay, you can give me a cue, Deepak, when it is launched. Meanwhile, Okay, sir. the things I was talking about, data warehouse, the properties of data warehouse. For one, it is integrated repository. For two, it is subject oriented. And for three, it was non-volatile. Fourth property which it exhibits is it is time variant.
can be seemingly, it may look like that it is contradictory with non-volatile. ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें? नॉन वोलेटाइल, अरे अभी भी तो बता रहे थे कि चेंज नहीं करेंगे इसको, बट टाइम वेरिएंट ये होगा। चेंज कैसा नहीं करेंगे? अननेसेसरी चेंज नहीं करेंगे, बट टाइम के साथ अगर चेंज आते हैं इट शुड बी एबल टू इंटीग्रेट दैट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एम्प्लॉय आईडी एक्स की बात कर रहे थे, एम्प्लॉय आईडी एक्स जिसकी सैलरी 50K है, ये कब है? ये अभी है। परहैप्स इसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर से 60K हो जाती है। तो थिंक अबाउट इट, ये टाइम वेरिएंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे Yes, चेंज sir. होने चाहिए, राइट? Yes, sir. तो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें डेटा सेट में, वो चेंज भी होने चाहिए। टाइम के साथ जैसे जैसे नया डेटा आ रहा है वो कैप्चर भी होना चाहिए। देन इट बिकम्स अ प्रॉपर डेटा वेयर हाउस विच कैन बी यूज्ड फॉर, क्या बोलते हैं उसको, ओलैप, ओलैप, OLTP, सुना है नाम ये? हाँ सर, नहीं, मैंने नहीं कॉलैब सुना नहीं सर। सुना है। ओलैप, OLTP, ये कुछ नाम सुन रखे हैं आप लोगों ने? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, बिकॉज गूगल कोलैब सुना है सर। जस्ट नहीं सर, ये एक्चुअली ये नहीं सुना सर, वो मैं कॉलैब समझा, ये नहीं सुना है सर। नो नो नो, नॉट कोलैब। कोलैब तो दैट इज गूगल कोलैब फैसिलिटी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस, ओलैप, OLTP। ओके ओके, maybe I will have to talk about this also. Okay, I will talk about this also just in a while. Okay, let's do one thing. It is okay, it is 15, not 15 exactly, but almost, okay, at least 15 minutes to 9. It has been some time straight, so let's take a break. Okay, ब्रेक कर लो, बिकॉज 1 घंटे से ज़्यादा हो ही गया है। And please be back in time. Okay, we will continue at 9 sharp. ठीक है सर। Fair guys? So yes, walk around, just stretch yourself, grab some water, ओके सर। and be back in time. Okay, see you there. ठीक। Hey again. Hope you guys are here. Yes sir. Okay. तो इंस्टॉलेशन का वीडियो मतलब विंडो आ गया है इंस्टॉलेशन का। Okay. Very well, Deepak. I'm making you presenter, and please share the screen. Just take it down. Yes sir. Is it visible? विजिबल है सर मेरी स्क्रीन? हाँ दीपक, अच्छा, अब क्या करना है सर? हेलो सर।
Hi, Uday. अभिषेक तुझे सुनाई दे रहा है? हाँ दीपक यार, सर सुनाई दे रहा है। मेरे ख्याल से सर कुछ कर रहे हैं अभी, शायद एडजस्ट कर रहे हैं कुछ। Oh, yes, Deepak. Okay, I can see the screen. And okay, yes. Setup, we will set up it with the developer default. So choose next here. By default वो developer default पे ही है, यहाँ पर आ गए. And now we will try to install the connectors. So click on execute. Which one, sir? Execute आ रहा है, नीचे 4 ऑप्शन है ना दीपक, बैक, execute, next and cancel. अच्छा एक्सिक्यूट तो हाँ. सेलेक्ट नहीं करना कुछ भी ऊपर? No, it will take them itself. एग्जीक्यूट. इससे आपके कुछ कनेक्टर्स हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे. ओके, आई एग्री एंड इंस्टॉल. हो गया. नेक्स्ट कर दूं सर? So now they are all done. One is left which is Visual Studio version. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You click on next. छोड़ो उसको, next करो क्लिक. It will say one or more product. हाँ, yes, you can continue. Okay, now we are installing the facilities. So click on execute. काफी सारी चीजें इंस्टॉल कराता है. So it will keep on installing all of them. Meanwhile, I'm continuing with summary something. तो दीपक आगे मत चलना, जैसे ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा. जब ये सारे इंस्टॉल हो जाए मेरे को बता देंगे आप. तो आई विल मेक यू प्रेजेंटर अगेन एंड वी विल कंटिन्यू. ठीक है सर. ओके. मीनवाइल कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने अगर सुने हो तो, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स व्हिच आर डन, प्रोसीजर्स, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, ऐसे कुछ नाम सुने? डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक. स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं क्या सर? स्टोर्ड प्रोसीजर की बात कर रहे हैं क्या? किसकी? स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं क्या सर? No, this is pertaining to data science. See, when you have the data, what are the kinds of analytics which are done?
Okay, I'll show you. Everybody is mad about data, but once you have data, what will you do? So these are broadly the categories of types of analytics कि किस टाइप का एनालिटिक्स डेटा के साथ किया जा सकता है. So there are these 5 types of analytics which are done: descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, and finally it goes into the realm of cognitive analytics, which is beyond the scope of your curriculum, but others you should know anyway the terminology. कोई है कुछ बात ऐसी जानते हैं आप ये क्या है? प्रेडिक्टिव तो जानते हैं, प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्शन करना, सेल्स वगैरह. ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूँ इनकी एंड बता देना if it is going interesting or is it goes boring. One thing is for sure that you should know these terminologies. So कोई I will दिक्कत. understand this with help of an example. Descriptive analytics is basically जो नाम है इसका descriptive, describe. It tries to describe that what has happened in the past, what my existing data is telling me, what has been going on. For example, I hope all of you will gel to it. Suppose there is a company and they are manufacturing a product, say laptops. They are marketing their product and उसके लिए कुछ बजट लगता है उनको ऐड करने के लिए. Maybe hoardings, maybe TV ads, maybe newspaper ads. तो उस पे उनका बजट कुछ स्पेंड होता है. They are recording this and okay, and they are making some sales also. कुछ सेल्स भी हो रहा है उनका प्रोडक्ट and they are recording this data month on month, year on year. So think about it, after a certain period of time it is a data set in itself. सही बात है, ये डेटा बन जाएगा. Yes. And now suppose say somebody from senior management, say the CEO walks in to marketing department one day and asks the question कि भाई मार्केटिंग क्या चल रहा है, क्या जानना चाह रहा है वो? What has happened in the past? क्या इस डेटा से हम बता सकते हैं? So that is descriptive analytics. We are trying to describe what has been going on. तो हाँ जी, कैसे बताएंगे सीईओ साहब को कि ये लो, ये पकड़ो एक्सेल शीट. मतलब सर वही बताएंगे, नहीं विजुअलाइजेशन वगैरह बताएंगे क्या और बताएंगे कैसे? मतलब वही रिलेशन वगैरह बता के, स्टैटिस्टिक जैसे बता रखा है इसके अंदर. अरे मार्केटिंग बजट स्टैटिस्टिक तो बढ़ता है, बहुत सेल होती है और बढ़ता है, जो भी रिलेशन है. That's where Tableau becomes important. So Tableau is not just to play around with the graphs. ऐसा बना के देखा और वैसा बना के देखा. It is a powerful tool. जैसे फोरकास्ट करने के काम आता है ये लीनियर डाला हुआ है इसके अंदर. This tabular form, the Excel sheet, or maybe statistical entities which you are talking about, कि R squared इतना है और वो इतना है, वो बताएंगे. तो यार दोनों चीजें में है ना. एक तो सीईओ को आता नहीं एनालिसिस, उसे नहीं पता R squared क्या होती है. दूसरे उसके पास टाइम कम है. What they will need is visualization. जल्दी से एक ग्राफ बना के दिखाओ और समझाओ क्या हो रहा है यहाँ पे. तो अब मार्केटिंग क्या बता रहा है उनको कि देखो सर, जिस महीने हम बजट कम रखते थे तो सेल्स भी ऐसा ऐसा था, फिर हमने बजट बढ़ाना शुरू किया. पहले कुछ महीने कुछ खास नहीं हुआ, बट देन वी सॉ दैट देयर इज राइज इन सेल्स एंड सिंस देन देयर इज अ क्लीन ट्रेंड that as we are increasing marketing budget,
हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता बढ़ता जा रहा है। नाइस, प्रमोशन दे दो आज तो। ठीक बात है, समझ पा रहे हैं? इजी, सिंपल, स्ट्रेट। Yes, sir. So Yes, this is the role of Tableau. It is not just another stepney. It is important for visualizations. It gives, you know, dynamic nature to your analysis. फटाफट फटाफट जैसे पीपीटी बनाने की कुछ जरूरत पड़ती है हमें, कोई पीपीटी नहीं बनाना। You create Tableau dashboards and done with it. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स वो क्या होता है? वो भी वही होता है जो नाम है उसका, diagnostic. It diagnoses for a reason. For a reason like why something has happened. For example, अभी जो आप देख रहे थे, अभी हमने एक ग्राफ देखा जहां पर हम क्या देख रहे थे, that on one axis there is y एक्सिस पे हमने सेल्स रखा, x एक्सिस पे हमने रखा मार्केटिंग बजट। जस्ट स्पेयर माय ड्राइंग। और हमने एक प्लॉट बना के दिखाया जो बड़ा अच्छा था बाय द वे। सपोज वो इतना अच्छा नहीं आता, सपोज वो प्लॉट कैसा आ जाता कि हर महीने मार्केटिंग बजट तो बढ़ता जा रहा है, सेल्स मोर और लेस एक ही ब्रैकेट में थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे होती जा रही है। तो अब की बार सीईओ सर क्या कहेंगे कि भाई मार्केटिंग, झोला उठाओ, निकलो यहाँ से। yes, sir. सही बात है। अबे बजट बढ़ाते जा रहे हो, सेल्स वहीं लटक रही है, कर क्या रहे हो? सही बात। तो चलो माना, ऑन अ सीरियस नोट, मे बी नॉट हायर एंड फायर थिंग। तो suppose the CEO is not a very mean person, CEO is a very nice lady in this scenario, तो at least, at the very least क्या कहेगी वो? At least they will ask yes or no. वो ये तो पूछेगी ना मार्केटिंग से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, why is it happening. So now this type of analytics is called diagnostic analytics. Pardon Deepak, didn't hear you fully. हाँ सर, यही पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो एक्शन प्लान क्या है टू राइज द सेल्स। So why something is happening, that is answered by diagnostic analytics. For example, in our case क्या कर सकते हैं वो डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस कर सकते हैं? मे बी दे कैन डू के मार्केटिंग बजट को ब्रेकअप कर ले कि हमारा बजट किस किस चैनल पे हम लगा रहे हैं, एंड इज इट रियली फ्रूटफुल, कहाँ ज़्यादा लगा रहे हैं, कहाँ कम लगा रहे हैं, कहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इमेजिनरी एग्जाम्पल दैट व्हाट आर द थिंग्स विच कुड हैव बीन डन। सो ऐसा करके वो सोच सकते सर हैं वो कि हो शायद गया इससे कुछ पता चले। हाँ सर, वो माइस्क्यूल वाला हो गया सर, वो सारे इंस्टॉल हो गया। Okay, all done, very fine. I am making you presenter again, Deepak. Okay, all installed, very fine. Click next and let's see. नेक्स्ट। Very fine. Yes, next. It is pretty straightforward. One thing to keep in mind is the port number, which is 3306. तो यही रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी चेंज हो जाता है, तो क्लिक नेक्स्ट।
एग्जीक्यूशन में कभी कभी दिक्कत आती है. ओके, यू कैन यूज द पासवर्ड. क्लिक नेक्स्ट. अब पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे. So you can set up a password. Keep this password. It should be not very easy, but keep it intuitive also. ऐसा नहीं हो कल को खुद ही भूल जाओ. नहीं सर, कोई दिक्कत. Okay, कर दूं सर नेक्स्ट. very वही fine. की बता Next. रहा देखो. This is my quality. All good. Very fine. Next. And now it will set configuration. Execute. Okay, maybe it will also take a little bit of time, Deepak. तो जैसे ये ठीक है कंप्लीट हो सर. जाता है तो भी मेरे को अगेन बता देना जैसे अभी बताया था, एंड आई विल कम बैक टू यू. ओके. Meanwhile, another one was predictive analytics, which you have already heard of and you have a fair idea about it. Predictive means now we are trying to predict something basis the existing data. Existing data में कुछ ट्रेंड और पैटर्न्स देख करके वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में हमारे टारगेट का क्या होने वाला है. द कीवर्ड हियर इज नियर फ्यूचर. For example, if I have past data of 5 years or 8 years or 10 years, maybe I can talk about what is going to happen in next month or couple of months or maybe 6 months. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 10 साल का डेटा देख के मैं अगले 5 साल के लिए प्रेडिक्शन दे दूं. I hope you know the practical complexity complications. Cannot be for a longer time in future. जैसे जो So well, you know what has happened, you know why did it happen. So now you are trying to predict what is likely to happen, at least which is most probable. When we talk about predictive analytics, we are predicting something, we are predicting the future. Can we be wrong? गलती हो सकती है हमसे. यस सर. सही बात है ना. We are predicting on the basis of some algorithms, some machine learning tools. So that is why when we predict, we always talk in probabilities. We cannot talk about it in black and white because we are data scientists. We are not gods. तो exactly future में क्या होगा हमें नहीं पता. But with a sense of probability, we can talk about what is likely to happen with this much of probability. So that's where probability comes in. तो मैथ्स भी आते रहना चाहिए आपको. Fourth part was prescriptive analytics. Now see, the experts have defined these terms like in 4 terms, but practically what I have seen across in industry, प्रेस्क्रिप्टिव कोई अलग से नहीं होता है. प्रेस्क्रिप्टिव क्या है? इट इज वही जो नाम है इसका, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्रिप्शन. डॉक्टर क्या देता है आपको? डॉक्टर आपको पूछेगा क्या सिम्टम है, कैसी नींद आई थी, कल क्या खाया था, दिस एंड दैट, एंड basis that all is these things what doctor is trying to do to get to know what to prescribe कि आप मेडिसिन दे दो.
तो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वही है कि भाई तुम्हें सब चीज़ तो पता है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आगे क्या होने वाला है. So prescriptive analytics is just the combination of all these other three. Finally we are trying to do, finally CEO मैम क्या पूछ रही है मुझसे कि भाई अब करना क्या है, ये बताओ. Okay. So these are the terminology. Then it goes into cognitive analytics, which is by far and by large, which is AI, artificial intelligence, जहाँ पर data is coming and data is going into machine and machine is taking decision also. Now this is the point where machine learning and artificial intelligence differ. Machine learning means आपने डेटा फीड किया है मशीन को, मशीन इज लर्निंग एंड मशीन इज टेलिंग यू कि ऐसा दिख रहा है. The onus of taking decision is still on you. Whereas artificial intelligence, the machine is capturing data, machine is doing all the analysis and running all the algorithms, and finally it will take decision also. It will not wait for your intervention. For example, Alexa या Google Assistant. Has it happened to somebody? Alexa है किसी के पास? या असिस्टेंट तो यूज किया होगा किसी ना किसी ने. सर वो मोबाइल में भी तो होते ही हैं एलेक्सा वगैरह, वो क्या बोलता है, जैसे एप्पल के मोबाइल में सीरी होता है. हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नो ह्यूमन इंटरवेंशन. सपोज आपने गूगल असिस्टेंट को बोला कि कॉल माय डैड, तो वो उठा के फोन लगा देगा. अगर आपका पास नंबर सेव होगा एंड यू हैव सेव्ड इट बाय नंबर डैडी, तो वो ढूंढ ढांड के कॉल लगा देगा, बिकॉज उसको समझ आया कि आप ये कह रहे हो. नाउ थिंक अबाउट इट, अगर उसको समझ कुछ गलत आ गया, तो देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम गूगल टीम. Nobody can stop Google Assistant from calling a different number. उसको कुछ और गलत समझ आ गया है तो वो उसको फोन लगा देगा उठा के. So it is taking decision also at the same time. So that is cognitive Yes. analytics. अच्छा सर, मेरा हो गया वैसे, उसके बाद फिनिश आ गया उस पर. Okay, very fine. So you are तो अब presenter again. फिनिश पे क्लिक करते ही सर ये आ गया वापस है. हाँ, तो सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो गया है. नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर राउटर. नाउ nitty-gritty थिंग्स. जस्ट क्लिक नेक्स्ट. अब फटाफट हो जाएगा. फिनिश कर दूं? Yeah, finished. Click next. Okay, now you are the root user. Enter the password and let's test connection. जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया था, check and connection is success. Fantastic. Click next. Execute.
So ये भी टाइम लेगा. maybe. बट अभी पंगे वाला काम कुछ नहीं बचा है. जो चीजें कभी कभी दुख दे देती हैं वो सारी चीजें ठीक चली गई हैं. हाँ मतलब इतना टाइम किसी में नहीं लगा इंस्टॉलेशन में. हमने बहुत सारे इंस्टॉलेशन किए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. रनिंग स्क्रिप्ट्स और तो इसके बाद सर नॉर्मल ही है ना, बस हो जाएगा ना फिर तो. हाँ, आफ्टर दैट इट इज जस्ट क्लिक इट विल ओपन MySQL वर्कबेंच इंस्टॉलेशन दिखा देगा. ये बता रहा है डू यू वांट टू टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. हाँ, वेट करूं फिर मैं. वेट क्लिक ऑन वेट. हो गया. हाँ, हो ही गया. फिनिश फिनिश. कर दो. राइट, फिनिश. वापस नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके एंड फिनिश. तो दोनों चीजें आपके लॉन्च होंगे, MySQL शेल एंड MySQL वर्कबेंच. जैसे फिनिश कर देते हो तो लेट देम लॉन्च. देखते हैं दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा, बस जस्ट 2 मिनट्स मोर. So this is what you see. This is MySQL shell. So this is where SQL queries will run. You will type your code and SQL query will be executed. तो एक्चुअल Okay. एग्जीक्यूशन यहाँ पर सेल में होता है. वी हैव इंस्टॉल्ड MySQL एज आवर डेटाबेस, जिस पर हम एज आवर DBMS, जहाँ पर हम अपना डेटा क्रिएट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फेच सम क्वेरीज. You see, like here it comes. अभी कर्सर आ गया है and you can type your queries like select, asterisk and all that. वो हम देखेंगे अभी. तो यहाँ पर भी कर सकते हो. However, Deepak, please close this. This shell. हाँ, शेल को बंद कर देंगे. Now this is workbench and this is the place where we will execute our queries. Workbench is just kind of IDE. जैसे आपने पाइथन के लिए जुपिटर यूज किया होगा. यस सर. आर के लिए आर स्टूडियो. आर के लिए आर स्टूडियो. तो सी, आर स्टूडियो अपने आप में कुछ नहीं है. इट इज जस्ट IDE फॉर आर. तो एक्चुअल सारा आपके कोड एग्जीक्यूशन, सारा एनालिसिस वो आर में हो रहा है. द टूल इज आर. आर स्टूडियो इज जस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद एनालॉजी ऑफ यूजर इंटरफेस. It ओके. is just like the user interface for the ease of communication. It is just a bridge between you and the tool so that you can communicate effectively. तो आर के लिए आर स्टूडियो होता है. पाइथन की शादी जुपिटर से हो रखी है. SQL के लिए हम वर्कबेंच यूज करेंगे. तो एग्जीक्यूशन सेल में ही होगा, बिहाइंड द स्क्रीन. We will communicate through workbench because it gives me certain facilities. ओके सर. So here you see, Deepak, MySQL connections में आ रहा है and there is only one connection which is root. So you are this root user. You can click on that and it will prompt you for a password. Click on this and enter the password. Okay, and your workbench has fired up. On the top left corner, you see it says local instance MySQL 80. और भी ऊपर दीपक, हाँ ये. So this is your connection currently. Connection in the sense, जो हमने पोर्ट एंटर किया था ना 3306 करके and local instance. So these are things which are coded, embedded for. See, currently हमें एक सर्वर चाहिए और उससे हम अपने मशीन को कनेक्ट करके क्वेरी करेंगे और डेटा उस सर्वर से अपने MySQL वर्कबेंच पे डिस्प्ले करके देखेंगे. तो फॉर करंट सिनेरियो, for this 3306 means the same machine will act as server and same machine will act as the terminal. Okay sir. Okay, so that's why this is local instance.
Okay. So very fine. So installation done and चलो आज के लिए I hope the session was somewhere informative. Yes, sir. हालांकि अभी हमने कुछ कोड नहीं कर पाए हैं आज, बट नेक्स्ट वीकेंड ऑनवर्ड्स वी विल बी ऑन टू सम सीरियस बिजनेस. तो अभिषेक, आप बता रहे हो कि MySQL वर्कबेंच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पास. ये देख लेना कि वर्कबेंच भी इंस्टॉल्ड है क्या, बिकॉज सर एक्चुअली है ना मेरे पास है ना सर SSMS इंस्टॉल्ड है, MySQL नहीं है. अच्छा अभिषेक, आई वुड रिकमेंड कि MySQL कर लो, अच्छा बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि एक तो आप जहाँ इंटरव्यू वगैरह में बात करोगे ना तो MySQL पे हो. एंड फर्क क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर स्टूडियो सर्वर है, there are some functionalities which work different on MySQL and they work differently on Microsoft server. ठीक है सर. ठीक है ना, कुछ थोड़े से कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं दोनों में. तो मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम कुछ एक्चुअली और करोगे. मैं क्या सर DB के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो TSQL प्लस इसमें तो एक्चुअली इसमें ज्यादा काम होता है, तो इसलिए ना मैंने ये SSMS किया था. That is okay, I am not denying that and that is perfectly fine, but as it may happen, मैं जो मैं अलग से कर लूंगा. हाँ, कुछ कीवर्ड्स कुछ ऐसे क्लॉज हैं SQL के which are different. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. मैं यहाँ पे वो क्लॉज रन कर रहा हूँ और आपके एंड पे वो रन नहीं हो पाया एंड तो यू नो मजा सा नहीं आएगा. ठीक है सर, ठीक है, मैं कर लूंगा. Same goes for you दोनों. I will upload the recording as soon as possible, latest by tomorrow evening, so you can ठीक है see सर. the installation part and जब वो आपका डाउनलोड हो जाता है, जब भी नेट कनेक्शन स्टेबल हो तो इंस्टॉल कर लेना. ठीक है सर. ओके ओके सर. Very well guys, so well I'll see you next weekend. Till then, bye bye and take care and hope for a better journey this time. So I shall take your leave. Bye everybody. Okay, sir. ओके सर, बाय, गुड नाइट. बाय सर.